Hi, good morning, my dear student. Today we will continue your class 12th history, chapter 4, Thinkers, Beliefs and Buildings. My dear, in this chapter, as you know that what we studied in our previous class, we discussed about that introduction of this chapter, role of the Bhopal Begums and Sultan Jahan Begums, and how the Sanchi was stand on their actual position still today. What is the importance of that place, importance of that architecture, and also the role of Buddhism. These are points we discussed in our previous class. In short, I inform you कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, what we studied till today about this chapter, one by one, step by step. In short, I am going to explain. It would be very helpful for you to remind your previous knowledge. In the starting of this chapter, we studied that we are going to study about that the history of 1000 years. This is the religious history of the 6th century BC to 6th century AD. From 6th century BC to 6th century AD, the history that is the very important. My dear, in this chapter, we will discuss that the teachers and thinkers, and also we are all aware of that the thinkers, they were not emerged only in India, they emerged in worldwide level. Kongji, Zarathustra, Aristotle, Plato, Socrates, and Mahavir and Buddha also. They emerged in India. What was their reason? I mean to say that their emergence, these were all the atheist sect. These were all who don't believe in God. And you should never forget that they were emerged due to the extreme practices of the Brahmanical religion during that time. The society, they were environed very much. Behind of that, a lot of unsatisfactions of the common peoples. I was discussed here in my last class. My dear, we also studied about the role of Sultan Jahan Begum and Shahjahan Begum. मैंने आपसे बताया था कि सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम, भोपाल की बेगमों का सांची स्तूप के प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। ये उन्हीं की देन है कि आज सांची अपने स्थान पर प्रॉपरली खड़ा है। इवन हम सांची के बारे में पढ़ेंगे, सांची के पूरे आर्किटेक्चर को समझेंगे, पूरे स्तूप वास्तु को हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इस सांची की स्तूप को जानने के पहले बौद्ध धर्म को समझना सबसे जरूरी है। Buddhism is very important. Their emergence also. मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि किस तरीके से फ्रांसीसी और अंग्रेज चाहते थे कि सांची स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार, पूर्वी ग्रैंड गेटवे, स्पेशली गेटवे दैट वाज वेरी फाइन वे, अच्छे तरीके से बेहतरीन फॉर्म में वो आज भी अपने यथास्थिति में खड़ा था, उसको ले जाना चाहते थे फ्रांस। यही प्रयास कमोबेश अंग्रेजों ने भी किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई, सुल्तान जहां और शाहजहां बेगम ने इसके लिए परमिशन एक्सेप्ट नहीं की, और फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई इसकी अनुकृति को अपने यहाँ म्यूजियम में रखना स्वीकार कर लिया। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सांची जिस जगह स्थित था वो उस समय के रेलवे ट्रैक पे नहीं थी, ट्रेन रूट पे नहीं थी, और सांची पे किसी कॉन्ट्रैक्टर्स का निगाह नहीं पड़ा। अदरवाइज सांची भी अमरावती की तरह ही नष्ट हो जाती। When we will read about Amravati and when we will compare about Sanchi and Amravati, we will discuss that why Sanchi stand on particular place nowadays and Amravati that was destroyed. What was the reason behind that? We will discuss. हम इन चीज़ों पे बात करेंगे।
हम लोगों ने इतनी चीज़ों पे पिछली क्लासेस में बात की थी। अभी आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे कि क्या कारण था कि 6th सेंचुरी बीसी में नए नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ। ऑथिस्ट रिलीजियस सेक्ट इमर्ज। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? तो हमने लास्ट क्लास जहाँ से शुरू की थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि रीजन क्या था। लेटर वैदिक पीरियड में एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस सोसाइटी में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ये एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी में बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ये एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस क्या थी? तो मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड सिस्टम जो पहले ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय पे आधारित था, ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, अब वो बर्थ पे हो गया, जन्म के आधार पर हो गया, जन्मना के आधार पर हो गया। आई होप यू हैव रिमेंबर आई वॉज डिस्कस दिस पॉइंट इन योर ऑनलाइन क्लास दैट इन ऋग्वेद द नवम मंडल, इट मीन्स 9th chapters, वेयर अ स्टोरी गिवन। वहां पे 9वें मंडल में एक कवि कहता है, मैं कवि हूं, मेरी माँ आटा पीसती है और मेरे पिता डॉक्टर है। इट मीन्स एक ही परिवार के लोग 3 भिन्न भिन्न व्यवसायों में लगे हुए थे। इट मीन्स कि वो कवि है, इट मीन्स वो ब्राह्मण, उसका पिता डॉक्टर है, इट मीन्स वो वैश्य है, उसकी माँ गृहिणी घरों में काम करती है, तो इट मीन्स वो शूद्र है। देयर ऑक्यूपेशन दैट वाज बेस्ड ऑन देयर व्हाट, देयर वर्क, उनके जो व्यवसाय थे उनके कामों पे आधारित थे। एंड वन अदर थिंग्स विच आई वाज डिस्कस इन योर क्लास दैट अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, लॉर्ड कृष्णा announced in the Kurukshetra that चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। 4 वर्णों की उत्पत्ति मैंने की है गुण और कर्मों के आधार पर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट कि ये जो कहानी थी इसमें जन्म के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर थी। लेकिन लेटर वैदिक काल तक आते आते, उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये इसमें कई सारी कुरीतियां आ चुकी थी। यज्ञ बड़ी संख्या में बढ़ गए, यज्ञों की संख्या बढ़ गई। अब सामान्य वर्ग के लोग यज्ञ नहीं कर सकते थे, अब बड़े बड़े लोग ही यज्ञ करा सकते थे। वर्ण सिस्टम क्रिटिकल हो गया। स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से या तो वंचित कर दिया गया या तो उनका शिक्षा का अधिकार सीमित कर दिया गया। बड़ी मात्रा में फायर अल्टर्स में पशुओं की हानि हुई। अकॉर्डिंग टू वैदिक रिलीजन कि समुद्र के पार यात्रा करना पाप समझा जाता था, धर्म विरुद्ध समझा जाता था। सूद पे पैसा लेना और सूद पे पैसा देना दोनों ब्राह्मणिकल रिलीजन में कंडेम किया गया है, दोनों का विरोध किया गया है, जिससे व्यापार व्यवसाय भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहे थे। जानवरों की अधिक संख्या में बलि देने के कारण खेतों में बैलों की संख्या घटने लगी थी, कृषि पे उसका सीधा प्रभाव हो रहा था। और ये वही समय था जब इंडियन कॉन्टिनेंट में, कंप्लीट इंडियन कॉन्टिनेंट में महाजनपदों का उद्भव, महाजनपदों का इमर्जेंस दिखाई दे रहा था। 16 महाजनपद एंड 10 canals, they were come into existence during that time, according to their capacity, according to their capability, according to their geographical condition, according to their demography. The Mahajanpad, they took their prosperity. I hope you have remember, I was discussed that why Magad developed than others Mahajanpad. What was the reason of the rise of the Magad Mahajanpad? We studied in chapter 2. I hope you have remember what was the reason behind that. And one matter is that religious also. एक धार्मिक कारण भी था। ये बातें आपको नहीं भूलनी चाहिए माय डियर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये चीजें समय के अकॉर्डिंग बदलाव और समय के अकॉर्डिंग ये चेंजेस हो रही थी।
चीजों पे विस्तार से चर्चा हुई। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 64 सेक्ट, हाउ मेनी सेक्ट्स? कहता है कि 64 सेक्ट्स 6th सेंचुरी बीसी में during 6th century BC. Religious sect emerged in 4 Indian continents. How many sects? 64. Buddhism, and Jainism among them. ये वही समय था जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का उद्भव। माय डियर, यहाँ से एक पूरा का पूरा व्यवस्था को दिखाई देता है। हमने आपसे कहा कि 6th सेंचुरी बीसी में एक पूरा का पूरा बदलाव दिखाई देता है। 64 जो रिलीजियस सेक्ट थे उनका उद्भव दिखाई देता है, और इन लोगों ने ब्राह्मणिकल थॉट्स के साथ डिबेट किया, और इस डिबेट के फलस्वरूप ही नए रिलीजियस सेक्ट 6th सेंचुरी बीसी में हमें बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। आई होप अब आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए अब आपके बुक के पॉइंट को लिखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, कंक्लूड बुक, एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट, आई मीन टू से दैट थर्ड पॉइंट, कि अब नए प्रश्न क्या है, कुछ नए क्वेश्चंस हैं। माय डियर, द 2 क्वेश्चंस, 2.1 the sacrificial traditions and 2.2 that is the new questions। हमने जो बातें पढ़ी उन चीज़ों में 2 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन 2 प्रश्नों में जो बातें की गई कि जो विवाद हुए, इट मीन्स जो याज्ञिक कर्मकांड हो रहे थे, जो पशु बलि दी जा रही थी, जो बड़े पैमानों पर जो पशुओं को यज्ञ के लिए उपयोग में लाया जा रहा था, बलि के लिए उनका यूज किया जा रहा था, ये अपने में यूनिक व्यवस्था थी जिसका विरोध समकालीन समय में बड़ी तेजी से हो रहा था। इसी चीजों की जो वाद विवाद हुए, जो चर्चाएं हुई, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोगों ने भारत में 64 सेक्ट, रिलीजियस सेक्ट्स उद्भव हुआ, 64 संप्रदायों का उद्भव हुआ, और ये 64 संप्रदाय चिंतन परंपरा का उल्लेख भिन्न भिन्न तरीके से अपने धार्मिक ग्रंथों में उन्होंने किया है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक पूरी श्रृंखला मिलती है। टीचर के रूप में ये थिंकर्स एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ये लोग माइग्रेट करते थे, आते जाते थे। ये अपने में एक यूनिक बात थी, महत्वपूर्ण बात थी। घूम घूम कर ये लोग गांव गांव, नगर नगर एक दूसरे को दर्शन देते थे और विश्व के लिए इस विषय में अपनी समझ को एक दूसरे से परिचित कराते थे। तो ये जो व्यवस्था थी, ये जो परंपरा थी, इसका विकास बड़े दूर तक बड़ी संख्या में हुआ, और ये चीजें निश्चित रूप से भारतीय समाज के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए एक महत्वपूर्ण रोल में, एक नए फॉर्म में हमें दिखाई देती है। माय डियर, I hope you are getting understand that is the very important things that the religious teachers and thinkers, they wander one place to other place, they migrate one place to other place, and they discuss every and each matter which is very disputed,
They given the particular logic, and they denied the extreme practices which was imposed by the Brahmanical religion on the society. So that's why suddenly we see, suddenly we observe that the common people, the huge amount they converted the in the Buddhism. धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार बढ़ने लगा. इसी तरीके से जैन धर्म ने भी अपने को स्थापित कर रखा था. इन लोगों ने बड़े पैमाने पे इन पूरी चीज़ों को, इन पूरी व्यवस्थाओं को बदला था. एक बड़ी बदलाव, एक बड़ी चीज उस समय के समाज के आवश्यक थी. माय डियर, यू आर ऑल गेटिंग अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करें, देखें, इस टॉपिक को पढ़ें, तो आप इन चीज़ों को बड़े आसानी से समझ सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइए अब इन्हीं चीज़ों को हम आपको बुक के फॉर्म में पढ़ाते हैं. एक्स रिकॉर्डर पे आते हैं. एक्स रिकॉर्डर पे पेज पे चलते हैं. एंड इट वुड बी बेटर फॉर यू व्हेन आई विल रीड दिस टॉपिक एंड एक्सप्लेन प्रॉपरली in front of you. That is the board work which we have completed. But in my next class, I will continue that point on the particular that एक एग्जैक्ट वे से हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको चलेंगे. एक्स रिकॉर्डर में आइए, बुक पे आइए, जरा बुक पे देखते हैं कुछ पॉइंट्स. कुछ चीजों बुक पे 2.1 the sacrifices, the sacrificial traditions, and second 2.2 that is find the new questions. What was the new questions? What was the new types of the sacrificial traditions? क्या है ये, किन चीजों पे भी देखेंगे. आइए अब देखते हैं एक्स रिकॉर्डर से इन चीजों को. So, my dear, if you'll see your topic, the background, sacrifices and debate, which I discussed on the board, when you will read this paragraph, you can easily understand about that which type of debates and which type of hypothesis that was growing during that time. That was a time. It means the mid first millennium BC is often regarded as the turning point in world history. I have already informed you regarding that it was a lot of thinkers such as Zarathustra in Iran, Kongji in China, Socrates and Plato, Aristotle in Greek, and Mahavira and Gautam Buddha, among many others in India. They try to understand the mysterious of existence of the relationship between the human beings and the cosmic order. This was also the time when the new kingdoms and the critics were developing and the social and economic life was changing in a variety of ways in the Ganga Valley. The thinkers attempt to understand these development as well. My dear, मैंने आपसे पिछले क्लासेस में भी बताया, अभी मैंने बोर्ड पे बताया कि 6th सेंचुरी BC में पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे समाज सुधारकों की प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई. विश्व के विभिन्न भागों में महान टीचर्स, फिलासफर, समाज सुधारक पैदा हुए. इन लोगों ने समाज सुधार की जो शुरुआत की, निश्चित रूप से एक सामाजिक क्रांति के रूप में वो हमारे सामने दिखाई देती है. इसीलिए 6th सेंचुरी BC को टर्निंग पॉइंट के रूप में माना जाता है. इफ यू विल रीड द 2.1, you can easily understand about that the importance of these type of sects. There were several pre-existing traditions of thought, religious belief and practices, including the early Vedic tradition known from the Rig Veda, compiled between the 1500 and 1000 BC. The Rig Veda consists of hymns in praises of a variety of deities, especially Agni, Indra, and Som. Many of these hymns were chanted
when sacrifices were performed, where people prayed for cattle, sun, good health, long life, etc. जब यज्ञिक परंपरा का शुरुआत हुआ ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 बीसी के बीच, तो वैदिक आर्यों ने बड़े बड़े यज्ञ किए। ऋग्वैदिक देवताओं में प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, इन देवताओं के नाम से उन्होंने यज्ञ में हवि डाली और अपने सुखद जीवन के लिए, सुखद भविष्य के लिए कामना किया। अपने लिए अधिक संख्या में मवेशी, जानवर, उत्तम पुत्र, उत्तम स्वास्थ्य और लंबे जीवन की उन्होंने कामना की। At first sacrifices were performed collectively, later 1000 BC to 500 BC onward. Some were performed by the heads of households for the well-being in the domestic unit. More elaborated sacrifices such as the Rajasuya and Ashwamedh were performed by the chiefs and kings who depend on the Brahmins, priests, to conduct these rituals. बड़े बड़े यज्ञों का लेटर वैदिक काल तक आते आते जो यज्ञ ऋग्वैदिक काल में सभी लोग परिवार के साथ बैठ के किया करते थे, अब लेटर वैदिक काल में वो यज्ञ बड़े पैमाने पे और बड़े लोगों के द्वारा किए जाने लगे। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये ऐसे यज्ञ थे जिनको राजा पृष्ठ की सहायता से परफॉर्म करता था। इस तरह से यज्ञों की जो कर्मकांडता थी, जो यज्ञों में जटिलता थी, वो आने लगी। और यहीं से कुछ क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आए, न्यू क्वेश्चंस, मेनी आइडियाज फाउंड द उपनिषद। माय डियर, in my next class I will try to teach you that what is the meaning of Vedant and what is the meaning of Vedanga and the sequence of the Vedas, then after the other literature which is directly or indirectly connected with Vedanta. But here it is clearly mentioned in your book 2.2 new question, the many ideas found in the Upanishad. What is the meaning of Upanishad? Upanishad divided into two parts, Up and Nishad. It means Guru ke Sameep Baithna. During 6th century BC onward, Upanishad that was in their developed form. According to Upanishad, that the people were curious about the meaning of life, the possibility of life after death, and then after rebirth. Was rebirth due to past actions? Such issues were hotly debated. Thinkers were concerned with understanding the expressing the nature of the ultimate reality, and other outside the Vedic tradition asked whether or not there even was single ultimate reality. People also began the speculating the significance of the sacrificial tradition. My dear, according to Upanishad, the people were aware to understand about that the actual problem, कैसी प्रॉब्लम, कौन कौन से उपनिषद में अब इस बात की व्याख्या बनने लगी कि किस तरीके से लोगों की मृत्यु के संदर्भ में जानने की इच्छा, मृत्यु के बाद की इच्छा, मृत्यु के बाद लोग कहाँ जाते हैं, फिर क्या पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के लिए क्या मनुष्य के कर्म फल कारण बनते हैं, और क्या जो पुनर्जन्म है ये कई बार होता है,
साथ ही साथ पुनर्जन्म के लिए क्या क्या, पुनर्जन्म क्यों, कैसे, क्या कारण है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चाएं चलने लगी. Thinker were concerned with understanding the expressing the nature of the ultimate reality. वास्तविकता क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, सत्य की खोज के लिए प्रयास करने लगे. और अब यहीं से इतिहास एक नई दिशा और दशा को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो चुकी थी. उपनिषदों के माध्यम से लोगों के मन में अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका था. लोग अपने प्रश्नों को रखते थे. प्रश्नों का तार्किक व्याख्या और समाधान किया जाता था, which is given in your 2.3 debates and discussion. The topic is very important. The people, they were very much curious to know about that, what is the meaning of rebirth, causes of rebirth, what is the meaning of death. It means supernaturality and such type of other power. It was the more, क्या एकदम लौकिक विषयों पे जानने के लिए, अलौकिक विषयों के बारे में जानने के लिए अब लोग बड़े ही उत्साहित और उत्सुक थे. 2.3 debate and discussion. We get a glimpse of lively discussion and debates from Buddhist text, which mention as many as 64 sect or schools of thought. Teachers traveled from place to place, trying to convincing one another as well as lay person about the validity of their philosophy or way the understanding the world. Debates took place in the Kuttagar Sala. Kuttagar Sala, particular place, specific place where teachers stay, where organize the meetings, the intellectual assemble there, and the common people also. They asked for the various question. They try to solve their curiosity with the help of their teachers. They were satisfied. कुट्टागार साला शब्द की व्याख्या सबसे पहले हमें बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होती है. जब वैशाली की कुट्टागार साला में बुद्ध रुके, वर्षावास किए और वहाँ पे उन लोगों ने अपने लोगों के तमाम सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जो लोगों के मन में उत्सुकता का कारण बने हुए थे. कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 64 छोटे छोटे विभिन्न संप्रदायों का उदय हो चुका था, धार्मिक संप्रदायों का उदय हो चुका था. इन धार्मिक संप्रदायों के जो टीचर्स थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों को कन्विंस करते थे, उत्सुकता को शांत कराने का प्रयास करते थे. और साथ ही साथ ये गांव के उन लोगों के साथ था जिन्हें बाद में ब्राह्मणी व्यवस्था में निम्न स्थान प्राप्त दिया गया था. इसके लिए वो कुट्टागार साला में रुकते थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुट्टागार साला? लिटरली अ हट विद द पॉइंटेड रूफ, एक झोपड़ी जिसमें नुकीलाकार रूफ हो. और इन ए ग्रूव्स वर ट्रेवलिंग द medicants halted. If a philosopher succeeded in convincing one of his the rivals, the followers of the latter also became his disciples. और इस कुट्टागार साला में जो बहस होती थी, उस बहस में यदि टीचर अपने कंपटीटर को पराजित कर देता था तो वो कंपटीटर उस टीचर का फॉलोअर्स बन जाता था, डिसाइपल्स बन जाता था. और इस तरीके से संघ की स्थापना हुई. धीरे धीरे लोग फॉलोअर्स की संख्या में वृद्धि हुई. मेनी ऑफ दिस टीचर्स इंक्लूडिंग महावीर एंड बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास. बुद्ध और महावीर दोनों ने वेदों की महत्ता पे क्वेश्चन उठाया, प्रश्न चिन्ह उठाया. दे आल्सो emphasized individuals' agency, suggesting the men and women could survive to attain the liberation from their trials and the tribunals of worldly existence. This was in marked the contrast in the Brahmanical positions
wherein as have sin and the individual's existence was thought to be determined by his or her birth in the specific caste or gender. My dear, that was the time when Buddha and Mahavir type the intellectual personality took birth. They tried to solve the problems of the common people, suggesting they emphasize the individual agencies. उन्होंने आत्म अपदीपो भव की संकल्पना दी. Liberation from the trials and tribunes world existence. This was the marked contrast in the Brahmanical positions. ये यहाँ से उन्होंने तार्किक तरीके से इन बातों का खंडन किया, ब्राह्मणिकल बातों का खंडन किया. माय डियर, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो. आज के लिए इतना ही. फिर हम डिबेट एंड डिस्कस को फिर से पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. तैयारी करिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.